Hello everyone, my name is Saumy and I welcome you all in this TEQIP GATE classes initiative. So this is my 11th lecture of the subject material science, and in today's lecture we will discuss about the line defects and the planar defects or the surface defects in the crystal defects topic. Okay, so let's crack the gate. So what do you understand by the line defect? So whenever there is a deviation from the perfect arrangement of the atoms along a line in a lattice is known as line defects. Okay, so which means that if the atoms deviated, okay, from their regular lattice point along a line, okay, so that kind of defects are known as line defects, or we can also name them as dislocations. Okay, so these defects, they control strength and ductility of the metals. So presence of this line defect, it may reduce the ductility of the metals. Okay, and these defects, these are generated and move when sort of shear stress is applied. Okay, so they move when there is a shear stress is applied, okay, on the crystal lattice, and these are also generated due to the your solidification, okay, solidification of crystalline solids. Okay, so while solidification, there may be some factor, some process parameter, okay, which may help in forming this line defects within the crystal lattice. Okay, so usually this line defect, whether this is the edge defect or the screw dislocation, okay, so these get accumulated in any crystal lattice usually during the solidification. Okay, so the types of the line defects. So we have first type is known as edge dislocations, and second is the screw dislocation. Okay, so we'll understand each of them. So first is the edge dislocation. So edge dislocation से आप क्या समझते हैं पहले देखते हैं. So please read this line. So what it says, so whenever a half plane of atom is inserted between the plane of atoms in a perfect crystal, okay, the defect is known as edge dislocation. Okay, मतलब अगर इस तरह से कुछ आपका lattice crystal lattice है, okay, given by some rows and columns. Okay, let me draw this one. Okay, given by some rows and columns like this. And now, okay, so this is your perfect lattice. And now if I insert a half plane of atom like this, okay, if I insert a half plane of atom like this, okay, so this is known as your edge dislocation. Okay, and this edge dislocation, this may arise because of either application of shear stress or during the solidification. Okay, so you can understand with this diagram also. So this is how we are representing the edge dislocation. Okay, so this is your lattice. Okay, and in some particular plane, above the some particular plane like this, I'm highlighting this plane. So above this plane, or you can say above this plane, you have inserted a half plane of atom. Okay, so you have inserted this half plane of atom above some particular lattice plane. So this lattice plane above which you insert a half plane of atom is known as slip plane. Okay, this is known as slip plane. So ये slip plane के बारे में आपने और समझा है in slip systems. Okay, so the plane at which the slipping takes place, or we can say the resistance to the motion of slip is minimum. So that plane is known as a slip plane. ठीक है, तो slip plane वो plane होता है जहां पे आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको मिलता है, या जिस वो प्लेन बोल सकते हैं जहां पे आपका जो एज डिसलोकेशन जहां पे आप इंसर्ट करते हैं. ठीक है, so whenever you insert some half plane of atom, or you whenever there is a edge dislocation above some plane, so that kind of plane is known as slip plane. Okay, so in the above part you can see there is a insertion of this half plane of atom. So you can say for the given lattice points, ठीक है, for this given space you can say, so this is above part is crowded and the below part is less crowded, है ना. यहाँ पे आपका plane of half plane of atom ज्यादा है तो यहाँ पे crowd ज्यादा है atoms का, यहाँ पे crowd कम है. तो यहाँ पे इधर crowd ज्यादा है तो we can say that this is in compression. Okay, the above part is in compression and the below part this is in tension. Okay, above part is in compression, below part is in tension. Okay, like ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका पूरा ऐसा कंप्रेस्ड हो रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके एटम्स है, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये चूंकि सेम स्पेस में यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कम है, दूर दूर है. ठीक है, दूर दूर है, यहाँ पर क्राउडेड नहीं है, तो बोल सकते हैं कि बिलो इज इन द टेंशन. ओके, सो लेट्स सी. So we'll understand with this diagram further about the edge dislocation. Okay,
So you can understand that this is your lattice where there is this half plane of atom is being inserted. तो हम बोल सकते हैं कि इस crystal lattice में आपका H dislocation present है. Okay, so this may be due to some shear stress or due to your solidification or during the solidification. Okay, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने इसमें ऐसा कुछ shear stress टाउ इधर आपने पुट किया है, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. Now what is happening for this dislocation to move? What has to happen? This shear stress जो है इसको आपको क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, ओके, दिस इज नोन एज क्रिटिकली रिजॉल्व्ड शियर स्ट्रेस. ओके, शियर स्ट्रेस. सो ये जो आपका शियर स्ट्रेस है, दिस हैज टू बिकम equal to some critical resolved shear stress, then only we can see that there is a break of bond over here. At this point the bond is broken, okay, and there is a this bond got broke and it got, okay, it made a bond with this half plane of atom, and then if this is your first plane, second plane and third plane, and this is fourth plane and this is your fifth plane. ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि जो आपका सेकंड प्लेन ऑफ एटम है वो उसने नीचे प्लेन ऑफ एटम के साथ में यहाँ पे बॉन्डिंग कर ली, ओके, और जो थर्ड प्लेन ऑफ एटम था वहां पे ये आपका बॉन्ड इस तरह से टूट गया. अब इसी तरह से आपने ये शीयर स्ट्रेस लगाए हुए हो, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी थर्ड वाला अभी क्या कहते हैं इसके साथ में जुड़ गया है. ठीक है, सॉरी, अभी हम यहाँ इधर नीचे आए. ठीक है, सो लेट्स सी दिस 1 2 3 4 and 5. Okay, so now we can see that now third has bonded with this one below one, and fourth का जो आपका fourth plane जो था वहां पे इधर इसका bonding टूट गया. Okay, and then in this one we can see that fourth plane has again bonded with the planes in the bottom line, in the bottom to the slip plane. Okay, and the fifth plane का भी जो bond था वो आपका टूट गया. Okay, so this you can say this is your slip plane over here, slip plane SP you can just say. Okay, तो जिस प्लेन के ऊपर में आप ये हाफ प्लेन ऑफ एटम आप इंसर्ट करते हैं उस प्लेन को हम स्लिप प्लेन बोलते हैं. इसको आपने स्लिप सिस्टम में भी समझा है. कैसे समझा है कि जिस प्लेन पे आपको क्या कहते हैं, वी कैन से द प्लेन इन विच यू गेट the plastic deformation, okay, or the plane above which the atoms are sliding. Okay, so the atoms are sliding above some plane, so that plane is known as your slip plane. ठीक है, तो अब आपको जो स्लिपिंग हुआ था ना, दैट स्लिपिंग जो हम बोलते थे स्लिपिंग ऑफ एटम है ना, लाइक ग्लाइडिंग ऑफ द एटम ओवर वन अनदर. ठीक है, तो अब ये स्लिपिंग जो होता है इट इज ड्यू टू, वी कैन से इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ डिसलोकेशंस. ओके, ड्यू टू मोशन ऑफ डिसलोकेशंस. तो ये जो आपको दिख रहा है ये जो डिसलोकेशन है ना, ये जो डिस्टॉर्शन है, दिस इज अ काइंड ऑफ लैटिस डिस्टॉर्शन. ओके, क्योंकि ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस तो इस तरह से था, दिस वाज योर परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस. ओके, यहाँ पे आपको कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, परफेक्ट लैटिस है ये. सो ये आपका जो डिस्टॉर्शन है ये क्या है, आपका ये हाफ प्लेन ऑफ एटम ही दिख रहा है ना. तो इस तरह से आप जो शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो हाफ प्लेन ऑफ एटम है, ये जो डिस्टॉर्शन है ये इस तरह से मूव करता जा रहा है ना, ये इस तरह से मूव करता जा रहा है. तो अब ये जो आपको स्लिपिंग हुआ है एक प्लेन के दूसरे के ऊपर, ये स्लिपिंग हो रहा है, तो दिस स्लिपिंग इज वी कैन से बिकॉज ऑफ ड्यू टू मोशन ऑफ द डिसलोकेशन, है ना. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये जो सेकंड प्लेन ऑफ एटम है ये इधर थर्ड प्लेन ऑफ एटम पे आ गया, फिर थर्ड प्लेन, इस तरह से नहीं है, इनका बॉन्ड टूट रहा है बस, है ना. तो मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि आपका ऐसा एक लाइन में ऐसे 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, और सबके और एक पहले आदमी के हाथ में क्या है बोल सकते हैं कोई फल है, ठीक है, लाइक एप्पल और ऑरेंज. ठीक है, एंड दैट एप्पल एंड ऑरेंज वी कैन कंसीडर एज अ लैटिस डिस्टॉर्शन, and all these 5% we can consider as a plane of atom 1 2 3 4 5 that we have denoted over here. और अब ये क्या कर रहा है ना, एक पर्सन दूसरे पर्सन को आपको ये एप्पल जो है वो पास ऑन कर रहा है. ठीक है, दूसरे से तीसरे को गया, तीसरे से चौथे को गया, चौथे से पांचवे को गया. ठीक है, तो जो आपका पर्सन, जितने भी पर्सन है दे आर नॉट इंटरचेंजिंग देयर प्लेस, है ना. तो सिमिलरली द प्लेन ऑफ एटम्स आर नॉट मूविंग. Okay, what is moving is just this distortion we can say, you can assume it like this is the fruit that is moving from one person to the different person. Okay, so similarly what is happening, just we are getting the bond is being broken, and between us like we can say in the neighboring plane of atoms the bond is being broken and it is then joining again. Okay, so this is how we can represent the movement of this lattice distortion. Okay,
Okay, so we can understand this edge distribution with the help of Burgers vector also. So what is the Burgers vector? So let's see. So magnitude and the direction of the lattice distortion due to the dislocation is expressed in terms of the Burgers vector. Okay. So ये जो बर्गस वेक्टर बी, इससे आपको क्या पता चलता है? ये आपको बताता है कि कितने अमाउंट का आपका लैटिस डिस्टॉर्शन हुआ है, ठीक है, मतलब कितने अमाउंट का आपका या कितने मैग्नीट्यूड का लैटिस डिस्टॉर्शन हुआ है और किस डायरेक्शन में हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एज डिसलोकेशन में, तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि बर्गस वेक्टर आपको ये बताएगा कि आपका जो अपर प्लेन ऑफ एटम है वो आपका बॉटम प्लेन ऑफ एटम से कितना आपका मूव किया है, ठीक है, लाइक कितने अमाउंट का आपका मूवमेंट हुआ है अपर प्लेन ऑफ एटम का बॉटम प्लेन ऑफ एटम के कंपेयर में, ओके, और किस डायरेक्शन में हुआ है, ओके, सो वेदर इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट or whether it is shifting from right to left, okay, and by how much amount of like lattice space it is getting shifted, okay. So that this is given by your Burgers vector, the magnitude and the direction of the lattice distortion. So, and how you get this Burgers vector? So it is the vector required to close the loop when traveling an equal number of lattice points around the line defect. Okay, so this line defect, this can be both, either it can be edge dislocation or it can be screw dislocation. Okay, so we'll understand this particular point what we are trying to say in the coming slide with the help of some diagram. Okay, so just read this line again. So this is the vector required to close the loop, okay, when traveling equal number of lattice points. Okay, so like if there is let me just explain a little bit over here what I'm trying to say. Okay, if there is a perfect lattice, okay, if there is this perfect lattice over here, this is a perfect lattice without any distortion. Okay, this is a perfect lattice. So now if I move like 3 points in this direction, okay, from left to right, and if I move 2 lattice point in the bottom direction, and I again now if I want to close this loop, है ना, अब मैं इस तरह से अगर लूप को क्लोज करना चाहूंगा तो जितना पॉइंट मैं इधर लेफ्ट से राइट में गया है उतना ही लैटिस पॉइंट मैं इधर जाऊंगा राइट से लेफ्ट में, ठीक है. सो 3 पॉइंट्स आई विल मूव इन दिस वे एंड अगेन 2 पॉइंट्स आई विल मूव इन द अपर डायरेक्शन. ओके, सो इस तरह से मैंने क्या किया है, लूप को क्लोज कर दिया है. अभी क्या है, परफेक्ट लैटिस के केस में बर्गस वेक्टर का वैल्यू हो जाता है 0, क्योंकि यहां पर देयर इज नो लैटिस डिस्टॉर्शन, देयर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ एनी बर्गस वेक्टर. ओके, but whenever there is a dislocation or whenever there is some line defect, so while traveling this equal number of lattice points to close the loop, you will not able to close, है ना. तो आप ऐसा एक दो लैटिस पॉइंट उसमें छूट जाएगा क्लोज करने का. विल सी इन द नेक्स्ट कमिंग डायग्राम. सो वो जो लूप को क्लोज करने के लिए जो आपको वेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है या जो भी आपको जिस मैग्नीट्यूड का आपको लाइन का रिक्वायरमेंट है, सो दैट इज योर बर्गस वेक्टर. ओके, we'll understand this point further in the coming slide. So this Burgers vector, this is perpendicular to the edge dislocation. This is very important point, usually asked in your GATE and IIScs. Okay, and the edge dislocation, this moves in a direction of Burgers vector B. So this particular 2 point, this is very important. आपको अगर एज डिसलोकेशन या स्क्रू डिसलोकेशन में कोई भी जानकारी का क्वेश्चन आता है तो मोस्टली इसी दोनों पॉइंट पे पूछते हैं, ठीक है. तो इट इज परपेंडिकुलर टू द एज डिसलोकेशन एंड एज डिसलोकेशन मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ बर्गस वेक्टर. एंड हाउ दिस इज हैपनिंग विल सी इन द कमिंग स्लाइड, इन दिस स्लाइड. ओके, so this is I have taken from Callister. Okay, so you can understand. Okay, we have this sort of lattice over here, and this lattice we are having extra plane of atoms. Okay, so यहाँ पे आपको lattice distortion मिला है, extra plane of atom यहाँ पर है, तो this is particular is your slip plane SP. okay, तो स्लिप प्लेन के ऊपर में अगर आप जिस प्लेन के ऊपर में आप हाफ प्लेन ऑफ एटम रखते हैं उस प्लेन को हम बोलते हैं स्लिप प्लेन, ठीक है ना. अब इसके ऊपर वाला पार्ट होगा आपका कंप्रेशन में, नीचे वाला पार्ट होगा टेंशन में, ये अभी आपको बताया ही है. ओके, so now if I want to move like if I want to close the loop, है ना, तो मैं अब इस पॉइंट से मूव करता हूँ. I let me move by this point, है ना. ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ. चलिए, okay, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ऐसा P पॉइंट बोल देता हूँ. लेट मी कॉल दिस एज P पॉइंट. ओके, सो आई विल मूव लाइक मैंने इस पॉइंट से मूव किया है. यहाँ पे ये एक लैटिस पॉइंट, इधर में गया, इधर दो लैटिस पॉइंट, है ना, इधर एक लैटिस पॉइंट, इधर दो लैटिस पॉइंट, इस साइड की ओर मूव किया मैंने.
अभी बॉटम साइड में मैंने कितना मूव किया, ये एक लैटिस पॉइंट मूव किया, दो लैटिस पॉइंट मूव किया, तीन लैटिस पॉइंट, इधर से मैंने इधर तीन लैटिस पॉइंट मूव किया है, ठीक है। अभी सिमिलरली मैं यहाँ पर आई विल मूव लाइक दो लैटिस पॉइंट, मुझे एक से दो लैटिस पॉइंट मैं यहाँ पे मूव किया, ठीक है। सो दिस इज वन लैटिस पॉइंट, दिस इज अनदर लैटिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ का एक पूरा माना जाएगा, यहाँ से यहाँ का एक पूरा माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं इधर पे दो और चलता हूँ, इधर तीन चला, इधर एक चार चला, ठीक है। टोटल मैं यहाँ तक चला, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ तीन लैटिस पॉइंट इधर मूव किया था, इधर मैं ऊपर मूव करता हूँ, तो मैं इधर मूव किया तो मैंने एक लैटिस पॉइंट इधर पार किया, दो लैटिस पॉइंट इधर पार किया, तीसरे लैटिस पॉइंट को इधर पार किया, ठीक है। नीचे ऊपर में मैंने यहाँ पर ये इतने आपके पॉइंट्स को पार किया, इधर इतने इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स को यहाँ पे पार किया। अब यहाँ से मुझे इधर मूव करना है, तो यहाँ पे मैं कितने में चला था, ये एक दो तीन चार इधर चला था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक दो इधर चला हूं, तो यहाँ पे मेरे पास में दो, एक लैटिस पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ठीक है। तो दो इधर से चला मैं, दो यहाँ से चला, ओके। इधर से चलते हुए मैं इतना मैंने कवर किया, इधर से चलते हुए मैंने इतना कवर किया, यहाँ पर मैंने कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ किया, ठीक है। तो ये एक दो तीन चार और ये टोटल इधर मैं इतना मूव किया। यहाँ पर ये एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, ओके। ये चार, ओके सॉरी, चलिए अब इस डायग्राम से समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बर्गस वेक्टर, ओके। So this over here, this I have taken from the Callister, okay, and from another book, I think by Smith. So this is your crystal lattice with some distortion, है ना। ये आपका यहाँ पे edge dislocation दिख रहा है, this is the half plane of atom, okay। ये हाफ प्लेन ऑफ एटम यहाँ पे इधर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जिस प्लेन के ऊपर में ये हाफ प्लेन ऑफ एटम आता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं स्लिप प्लेन, एसपी, ठीक है। जिस प्लेन के ऊपर में आप हाफ प्लेन ऑफ एटम को इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं एसपी, ओके। एंड इसका अब वाला पार्ट होता है आपका कंप्रेशन में, बिलो वाला पार्ट होता है आपका टेंशन में, ये भी आपको बताई है। चलिए तो अभी देखते हैं यहाँ पे हम क्रिस्टल लैटिस में यहाँ पे कैसे बर्गस वेक्टर में लूप क्लोज करते हुए डिफाइन करेंगे चीजों को, ओके। सो लेट मी टेल यू, टेक दिस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट P, ओके। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट P है, तो इस तरह से मैं लैटिस में मूव कर रहा हूँ फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट, ओके। तो दिस इज, मैं कितना मूव किया मैंने, ऐसे यहाँ पे तीन लैटिस पॉइंट मूव करता हूँ, ये P, देन ये आपका एक लैटिस पॉइंट, ये आपका दूसरा लैटिस पॉइंट, ठीक है। जैसे तीन लैटिस पॉइंट यहाँ मूव किया है इन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। देन इस तरह से मैं नीचे मूव करता हूँ, एक दो तीन, इधर इधर मूव किया है नीचे की ओर सेम अमाउंट में, ठीक है। अब यहाँ से मैं कितना मूव कर रहा हूँ, ये एक दो, इधर इसको गिनते हुए एक दो तीन चार पांच, ठीक है। ऐसा ही मैं यहाँ पे मूव किया, ओके। अब इसी तरह से मुझे ऊपर मूव करना है, तो यहाँ पे जितना मैंने मूव किया है, जैसे एक दो तीन चार यहाँ मूव किया, यहाँ पर भी मैं मूव करूंगा, तो ये एक दो तीन चार, ऐसा मैं ऊपर की ओर मूव किया मैंने, ठीक है। इधर जितना मूव किया है, इधर इतना मूव किया है। अब यहाँ पे नीचे की ओर मैंने कितना मूव किया, यहाँ पे एक दो तीन चार, इधर इस तरह 5 पॉइंट मूव किया, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये गया इधर इतना होते हुए, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये 3 पॉइंट का मोशन यहाँ हो चुका है, यहाँ पे अब ये 2 पॉइंट का ये रह गया, ठीक है। तो जितना मैंने नीचे मूव किया था उतना मैंने ऊपर मूव किया, बट अगेन मेरा ये जो लूप है वो क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। दिस लूप हैज नॉट बीन क्लोज्ड, ओके। तो इस लूप को क्लोज करने के लिए जो मुझे यहाँ पर वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब ये मेरे लिए होगा, ये एंड ऑफ द लूप हो गया, ये एंड ऑफ द मेरा ट्रैवल हो गया P डैश, ओके। अब मैं एंड ऑफ द ट्रैवल कर दिया बाय मूविंग द इक्वल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, बट नाउ दिस P डैश इज नॉट इक्वल्स टू P ना, P डैश इज नॉट इक्वल्स टू P, मतलब मेरा लूप क्लोज नहीं हुआ है व्हाइल मूविंग द इक्वल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। तो अब मुझे क्या करना है, तो ये जो आपको जो वेक्टर चाहिए इस लैटिस को, इस लूप को क्लोज करने के लिए, ये जो वेक्टर P डैश P है, ओके। सो दिस वेक्टर इज योर बर्गस वेक्टर, दिस वेक्टर इज योर बर्गस वेक्टर B, ओके। सो आई होप यहां से ये समझ में आया होगा। ये जो सर्किट बोलते हैं इसको हम बोलते हैं यूजुअली बर्गर सर्किट बोलते हैं, बर्गर सर्किट बोल लीजिए या सिंपल लूप बोल लीजिए, ओके। So the vector required to close the loop while traveling the equal number of lattice point, okay, around the line defect, okay, is known as Burgers vector ना, यही डेफिनेशन थी, ओके। तो यही चीज हमने किया है, हम यहाँ से जितने इक्वल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट गए हैं, यहाँ पे जितना नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट गए हैं, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट गए हैं, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट गए हैं, एंड यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट गए, बट इतना इक्वल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट चलने के बाद में भी हमारा लूप क्लोज नहीं हुआ है
है ना। तो मतलब लूप क्लोज नहीं हुआ है, मतलब दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्रिस्टल, बिकॉज अगर लूप क्लोज हो जाता तो बोल सकते थे कि ये जो बर्गस वेक्टर है ये आपका 0 हो जाता। ओके, सो इन केस ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल, अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल होता तो ये p डैश आपका p के बराबर में आ जाता, और ये जो आपका बर्गस वेक्टर है वो आपका इधर 0 आ जाता। देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द बर्गस वेक्टर। ओके, सो अब ये आपका डायरेक्शन आपका इस तरह से ये आपका शो कर रहा है कि आपका यहाँ पे मोशन किस तरह से आ रहा है, कितना मैग्नीट्यूड का आपका लैटिस डिस्टॉर्शन है और किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो अब ये हमारे लिए यहाँ पे अभी हम देखेंगे, जो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखाए थे, दैट बर्गस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एज डिसलोकेशन एंड एज डिसलोकेशन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ बर्गस वेक्टर बी। तो इसको समझते हैं यहाँ पे विद दिस डायग्राम। ओके, तो अभी ये जो आपके पास में डायग्राम है, तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे स्ट्रेस लगा है। ओके, यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेस टाउ लगा है, एंड दिस इज इक्वल्स टू टाउ सीआर, क्रिटिकली रिजॉल्व्ड शियर स्ट्रेस। Okay, this is critically resolved shear stress. So this is the minimum amount of stress required to cause the motion of the dislocation. Okay, so this is the minimum amount of stress required to cause this motion of this dislocation, or you can say minimum stress required to cause the plastic deformation. Okay, basic है, able to understand. Okay, अब ये जो आपका प्लेन ऑफ एटम, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम यहाँ पे आया था ना, ये हाफ प्लेन ऑफ एटम, ये जो आपको मिला है, ये हाफ प्लेन ऑफ एटम ये जो है। ओके, तो यहाँ पे आप इससे शो करेंगे, ये हाफ प्लेन ऑफ एटम यहाँ पे जो शेडेड है, तो इसका ये जो एज है, ओके, दिस एज इज योर एज डिसलोकेशन। ओके, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इन्वर्टेड लाइक टी, है ना। इन्वर्टेड टी से आप एज डिसलोकेशन को ऐसा आप डिनोट करते हैं। ओके, so this edge of this half plane of atom, this is your edge dislocation। और देख सकते हैं कि बर्गस वेक्टर आपका कैसा है, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, तो बर्गस वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे दिस बर्गस वेक्टर, दिस इज perpendicular, this b is perpendicular to this edge, obviously you can see this, so we can say that it is perpendicular to the edge dislocation। okay, and this edge dislocation मतलब ये जो आपका ये inverted t है, ये किस तरह से मूव कर रहा है, ये it is moving from left to right, है ना, इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस तरह से जो हम देखे थे पीछे साइड में, लेट मी गो अगेन, सो इस तरह से आपका जो लैटिस डिस्टॉर्शन है, इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरह से मूव कर रहा है। पहले ये इधर था, फिर ये इधर आया, फिर इधर आया, फिर ये लास्ट में इधर आ गया, है ना। तो इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। So simply we can say that this edge dislocation, it is moving in the direction of Burgers vector, है ना। Burgers vector is also from left to right, and this edge dislocation, this is also moving from left to right। Okay, so we have proved this point also, that edge dislocation move in a direction of your Burgers vector B। Okay, so someone has asked me in the previous lecture when we are talking about slip system, that why the slip system is the densely packed plane, मतलब जो densely packed planes होते हैं उसमें आपका मोशन या उसमें जो आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो इजी कैसे होता है। तो उसका रीजन यही है कि आपका जो एनर्जी एसोसिएटेड है ना, जो आपका स्ट्रेन एनर्जी एसोसिएटेड विद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। ओके, so that is proportional to this energy, this is proportional to your square of the Burgers vector। okay, so Burgers vector जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए। so in case of a slip plane, this Burgers vector is shortest। okay, B is shortest for any slip plane, है ना। ये आपका slip plane के लिए this is a shortest। okay, सो अभी आपका शॉर्टेस्ट है, तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू कॉज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज मिनिमम। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो होता है स्लिपिंग जो होता है, या फिर बोल सकते हैं जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो काफी इजी हो जाता है। एंड यूजुअली दिस फॉर्मूला, दिस ई, अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप हटाते हैं, ओके, सो लेट मी राइट हियर ओवर। so if you remove this proportionality constant, usually we get this formula E equals to half g b square। okay, so this is the elastic energy of dislocation, you can say elastic strain energy of dislocation। okay, तो ये क्या है आपका डिसलोकेशन का स्ट्रेन एनर्जी है। okay, it is given by half g b square, where g is your modulus of rigidity। okay, so this has been asked in one IISc question, है ना। तो ये आपका बेसिकली यही होता है। और ये shear stress है, this shear tau cr, है ना, this is given by
पियर-नेबारोज इक्वेशन, पियर-नेबारो स्ट्रेस इक्वेशन, ओके, पीएन स्ट्रेस इक्वेशन, ये आप इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, नो इशू, है ना। दिस क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस, दिस इज गिवन बाय पीएन स्ट्रेस इक्वेशन, पियर-नेबारो स्ट्रेस इक्वेशन, ओके। Now coming to the screw dislocations. So these are formed by applying the upward and downward shear stresses to the regions of perfect crystal that has been separated by the cutting plane. मतलब आपका कोई एक ऐसा you have some crystal lattice like this, okay, ऐसा कुछ आपका crystal lattice है, इस तरीके से perfect crystal lattice है, okay। अब उस पर अगर आप ऐसा कुछ यहाँ से इधर से आप स्ट्रेस लगाएंगे, इधर इधर कुछ स्ट्रेस लगाएंगे, ओके, तो इस तरह से ये इसको ऐसा काटने की कोशिश करेगा, लाइक व्हेन यू कट सम बटर विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, है ना, तो लाइक दिस, व्हेन यू आर डूइंग लाइक दिस, सो यू फॉर्म द काइंड ऑफ अ डिसलोकेशन इज नोन एज स्क्रू डिसलोकेशन, okay, so we'll understand better with the coming diagram. So this point is very important. So Burgers factor, this is parallel to the screw dislocation, है ना। ये था आपका परपेंडिकुलर किस केस में, एज डिसलोकेशन के केस पे, बट स्क्रू डिसलोकेशन के केस में बर्गस वेक्टर इज पैरेलल, एंड द स्क्रू डिसलोकेशन इट मूव्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बर्गस वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगेन एज डिसलोकेशन वाला काम उल्टा हो गया है, तो वहां पे एज डिसलोकेशन क्या था, वो इट मूव्स इन अ डायरेक्शन, है ना, वो बर्गस वेक्टर के डायरेक्शन में मूव करता था। यहाँ पे जो आपका स्क्रू डिसलोकेशन है वो आपका परपेंडिकुलर में मूव करता है, ठीक है। तो ये दोनों केस में आपके अपोजिट केसेस बनते हैं, ओके। सो एज में जहां पे पैरेलल है स्क्रू में, वहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, एज में जहां पे परपेंडिकुलर है स्क्रू में, वहां पे पैरेलल हो जाएगा। तो आप कोई भी एक कंडीशन को याद रख लीजिए, दूसरी अपने आप आपको याद हो जाएगी, ओके। So let's understand with this diagram what I meant to say with screw dislocation. तो ये इस तरह से आपका perfect crystal lattice है, ओके। अब आप इस तरह से यहाँ पर you are applying a stress, तो इस तरह से आपने यहाँ पे दो रीजन में बांट दिया है, ये आपका इधर लेफ्ट हो बोल सकते हैं, इसको राइट बोल दीजिए, या फ्रंट एंड बैक बोल दीजिए, इन विच एवर व्यू यू आर व्यूइंग इट, है ना। तो जैसे इसको लेफ्ट एंड राइट बोल दिया है, तो इस तरह से आप यहाँ पे स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हैं। अब इस तरह से आप स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपको लैटिस का डिस्टॉर्शन है वो आपका कैसे है, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर में, एंगुलर में है, ठीक है। अब जैसे एज में कैसा था आपका, लीनियर था, है ना, यहाँ पर कैसा है, एंगुलर है, डाउनवर्ड्स की साइड में। तो लेट्स रीड दिस लाइन अगेन। सो स्क्रू डिसलोकेशन ऑफ फॉर्म्ड बाय अप्लाइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शियर स्ट्रेसेस to the region of perfect crystal that have been separated by the cutting plane, है ना। तो यही है, आप यहाँ पे upward and downward forces लगा रहे हो perfect crystal में, which is being separated by this cutting plane, okay। So now what is happening, you are applying this shear stress, है ना, इस तरह से आप यहाँ पे shear stress यहाँ पे apply कर रहे हैं, okay। So you are applying this shear stress, sorry, okay, इस तरह से यहाँ पे shear stress को apply कर रहे हो। अब क्या है ना, अगर अब आपका ये जो डिस्टॉर्शन है वो सिर्फ यहीं तक है, ये सिर्फ यहीं तक है ना, यहीं तक ही दिख रहा है आपको, ये डिस्टॉर्शन आपको यहाँ तक ही दिख रहा है, ओके। इसके बैक साइड में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, फ्रंट साइड में खाली डिस्टॉर्शन है। तो ये जो आपका यहाँ पे ये जो बाउंड्री बन जाती है ना, ये आपकी यही बाउंड्री ये आपका डिवाइड कर रहा है ना, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ओके, दिस बाउंड्री, ये जो स्ट्रेट बाउंड्री है यहाँ पर, ये आपका डिनोट करता है स्क्रू डिसलोकेशन को, है ना। ये जो बाउंड्री है ये आपकी ये इस तरह से, सॉरी नॉट in this way, let me show properly। ये जो आपकी इस तरह से ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री यहाँ पर, ओके, तो ये जो बाउंड्री है, दिस इज योर स्क्रू डिसलोकेशन, ओके। तो दिस पर्टिकुलर बाउंड्री, दिस है ना, दिस इज योर स्क्रू डिसलोकेशन। मतलब ये जो आपका सेट ऑफ यहाँ पे ये इतना ये जो सेट ऑफ ये प्लेन था, है ना, इसके पीछे में आपको कोई स्लिपिंग नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का लैटिस डिस्टॉर्शन नहीं मिल रहा है इसके पीछे में, है ना, इसके पीछे में कहीं कोई लैटिस डिस्टॉर्शन नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है आपको यहीं पे मिल रहा है ना। इसके बैक साइड में तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये बोल सकते हैं जैसे अनस्लिप्ड रीजन बोल सकते हैं, है ना, अनस्लिप्ड रीजन बोल सकते हैं। ये आपका जैसे स्लिप्ड रीजन हो गया, ये स्लिप्ड रीजन हो गया, है ना। इस तरह से आपने डिवाइड कर रखे हैं रीजन्स को, ओके। तो ये जो बाउंड्री है बिटवीन दिस स्लिप्ड एंड अनस्लिप्ड रीजन, यही हमेशा डिसलोकेशन होता है। तो इस केस में हम इसको बोलेंगे स्क्रू डिसलोकेशन, ओके। अब सबसे पहले बात, इसका नाम स्क्रू डिसलोकेशन क्यों पड़ा उसको समझते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस तरह से ये आपका इस तरह से परफेक्ट लैटिस था, यहाँ पे आपने इसको नीचे की प्रेस किया, इसको ऊपर की ओर प्रेस किया, तो ये जो आपका हाफ प्लेन ये जो था इधर का,
ये हाफ क्रिस्टल लैटिस ये आपका थोड़ा सा डाउनवर्ड्स की ओर आ गया, ठीक है। तब आप इस तरह से अगर मूव कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से आप मूव कर रहे हैं, है ना, ये इस प्लेन ऑफ एटम में आप मूव कर रहे हैं और यहाँ पे आप आ रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि आपने स्टार्ट किया था यहाँ पर, स्टार्ट किया था ए पर, एंड किया आपने बी पर, ठीक है। एंड दिस ए इज ओवर हियर, ओके, ए इज ओवर हियर एंड बी इज अबव इट, है ना, बी इज अबव इट। So like you are moving, okay, you are moving around this dislocation, but you are not able to get to the point, है ना, मतलब आप इस तरह से स्क्रू की तरह मूव कर रहे थे, जैसे आप ऐसे गए और इस तरह से जब आपने एक रोटेशन पूरा कर लिया, तब आपने सेम प्लेन पर नहीं आए हैं, आप कैसे आए हैं, आपने प्लेन ऑफ आपका जो एक्शन है वो चेंज हो गया, है ना, आप ऊपर आ गए हैं, इस तरह से आप स्क्रू की तरह इस तरह से ऊपर आ गए हैं, इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो इस तरह से आपका स्क्रू बन जाएगा, है ना। तो ये क्या ऐसा हो रहा है, आपका स्क्रू का मोशन हो रहा है। आप ए से चले थे या ए पॉइंट से आप चले हैं, इस तरह से आप लूप को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप एक प्लेन ऑफ एटम आप ऊपर आ गए हो, आप सेम प्लेन पे नहीं है, आप कैसे आ गए, आप ऊपर आ गए हैं। ऊपर आ गए तो मतलब ये किस तरह से मोशन किया आपने, ऐसे स्क्रू वाला मोशन हो गया, ठीक है। So that's why this kind of dislocation is given as given the name screw dislocation. Okay, I hope ये बेसिक आपको एग्जांपल से समझ में आया हो। Okay, अभी यहाँ पे हम देखते हैं बर्गस वेक्टर की बात की कैसे हुआ था। तो ये हमारा अगेन इसको हम बोल देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया P। अब इस तरह से हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक यूनिट यहाँ गए, एक यूनिट यहाँ गए, ऐसे 3 यूनिट हम यहाँ मूव कर रहे हैं और यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, है ना, 6 यूनिट इधर मूव करे हैं। अब इसी तरह से 6 यूनिट यहाँ मूव करते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 6 यूनिट यहाँ मूव करे हैं। अब 6 यूनिट हमने यहाँ मूव कर लिया, 6 यहाँ कर लिया, तो इधर भी 6 करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरह से 6 यूनिट यहाँ पे हमने मूव कर लिया है। 6 यहाँ कर लिया, 6 यहाँ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 किया है तो यहाँ पर भी 6 करना है ना, अगर बैक साइड में 6 किया इधर भी करना है, तो यहाँ पे हमने 3 यूनिट मूव किया है, तो यहाँ पर भी 3 कर लेते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, है ना, तो यहाँ से हमने 3 यूनिट मूव किया, ये हो गया P डैश। बट P इज नॉट इक्वल टू P डैश, P इज नॉट इक्वल टू P डैश, है ना, यहाँ पे आपका पॉइंट रह गया है। तो ये जब आपको ये जो वेक्टर रिक्वायर्ड है टू क्लोज दिस लूप, ओके, so this vector which is required to close the loop is known as your Burgers vector B. Okay, so PP dash is your B. Okay, so this is your Burgers vector B. Now you can see that this Burgers vector is downwards. Okay, so it is in its downward. Okay, बर्गर वेक्टर आपका डाउनवर्ड है और आपका जो स्क्रू डिसलोकेशन था वही, इसको बोला है मैंने, ये जो बाउंड्री बनी है ना, दिस इज अ स्क्रू डिसलोकेशन, so this is your screw dislocation and this is your Burgers vector B, so you can see that this is parallel to each other, है ना, so we can get to this point that Burgers vector is parallel to the screw dislocations. Okay, and how this screw dislocation is moving, so it is moving from दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना, ये इस तरह से पीछे क्यों जाएगा, अभी जैसे आपने खाली यहां तक आपने स्लिपिंग किया है तो आपको यहां तक किया है, अब इसके पीछे भी तो ये स्लिपिंग करना है, पूरा का पूरा आपको लैटिस को ब्रेक करना है, तो आपका किस तरह से मूव कर रहा है आपका बर्गस वेक्टर, ये आपका जो स्क्रू डिसलोकेशन है वो इस तरह से यहाँ पे यहाँ की ओर इस तरह से मूव कर रहा है। सो बर्गस वेक्टर ये है आपका डाउनवर्ड्स की ओर मूवमेंट कैसे हो रहा है, फ्रॉम वी कैन से लीनियरली इन दिस साइड, है ना, ये आपका ट्रांसफरली इस साइड मूव कर रहा है, तो वी कैन से दैट मूवमेंट ऑफ दिस स्क्रू डिसलोकेशन इज परपेंडिकुलर टू द बर्गस वेक्टर, व्हिच इज योर fourth point over here. The screw dislocation moves in a direction perpendicular to the your Burgers vector. Okay, better to understand with this diagram also. So overall this is your again the same crystal lattice. तो यहाँ तक आपका स्लिपिंग हुआ है, तो ये जो आपका सॉरी ये जो आपका बाउंड्री बन रही है यहाँ पर, ओके, सो दिस इज योर स्क्रू डिसलोकेशन। Okay, so this is unslipped region and this is slipped region. Okay, Burgers vector is downwards over here. Okay, so अभी यहाँ पे आप इस डायरेक्शन से भी इधर से भी समझ सकते हैं इसको, अगर आप दूसरी तरीके से आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं ना, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया है, यहाँ पे फोर्स लगाया है, इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो बर्गस वेक्टर आपने कैसे किया, यहाँ पे ये इस तरह से ये टिल्ट करके, है ना, तो मतलब अगर हम यहाँ बुक से समझे, है ना, तो ये बुक इस तरह से है, सो आपने इस तरह से फोर्स लगाया तो ये इस तरह से ये टेढ़ा हो गया, है ना, ये इट गॉट ओके, सो इट इज लाइक आप यहाँ से इधर से खींच रहे हैं, इधर से आप खींच रहे हैं, ठीक है, ये कैसा होगा, ये इस तरह से डिस्टॉर्ट कर, ऐसा टेढ़ा कर रहा है ना, तो दिस इज योर बर्गस वेक्टर, दिस इज योर स्क्रू डिसलोकेशन टाइप ऑफ थिंग। तो ये जो आपका ये जो एज है ना, दिस एज,
दिस इज ओके। तो ये जो एज निकल के आ रहा है, दिस इज योर स्क्रू डिसलोकेशन। ओके, सो दिस इज एसडी, स्क्रू डिसलोकेशन, एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से इसको ऐसा मूव करना है इस डायरेक्शन में, ताकि आपका पूरा का पूरा ये यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्लेन ऑफ एटम है वो स्लिप कर जाए, इस तरह से आपका जो डिस्टॉर्शन बन जाए, ठीक है। So this direction is your this is your Burgers, ये स्क्रू डिसलोकेशन है, ये आपका बर्गस वेक्टर B है, ओके, एंड दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द बर्गस वेक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एच डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन। तो इनके आपके यही दो पॉइंट्स पूछते हैं दोनों के केसेस में, चाहे एच के केस में चाहे स्क्रू के केस में, कि बर्गस वेक्टर का क्या डायरेक्शन है और इसका जो मोशन है वो क्या है आपका बर्गस वेक्टर के रेस्पेक्ट में। ओके ओके, तो ये थी आपका एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। तो इसी में एक बार वापस से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे अगर एज डिसलोकेशन की, तो यही चीज चल रहा है आपका कि जैसे अगर आप किसी भी एक पॉइंट को ले लें, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे आपने ये कोई पॉइंट पी ले लिया है, तो अगर आप यहाँ से ऐसा 2 यूनिट यहाँ गए हैं, फिर ऐसा 3 यूनिट यहाँ गए हैं, है ना, फिर ऐसा 4 यूनिट इधर नीचे गए हैं, है ना, फिर अभी अब इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे लूप को क्लोज करना है। तो इस तरह से आप वापस 3 यूनिट ऊपर जाएंगे, तो ये 3 3 इधर हो गया, ये इधर 4 हो गया, है ना। अब इधर 4 चल दिया आपने, ऊपर में 2 चले हैं, तो अभी इधर भी आप इधर भी ऐसे 2 चलेंगे, है ना। तो चलने के बाद देख लिया कि आपने इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स चल लिया, मतलब 3 आप अप में गए, 3 आप लेफ्ट में गए, 3 आप राइट में गए, 4 आप अप में गए, 4 आप डाउन में गए। तो इसको करने के बाद आपको दिखा कि ये ऐसा आपको कुछ स्पेस अभी भी रह गया, लूप क्लोज नहीं हुआ है ना। सो दिस P and P dash, this is your Burgers vector B. So in case of a edge dislocation, so this is perpendicular to the edge, this Burgers vector, this is perpendicular to the edge dislocation. And in case of your screw dislocation, so this screw dislocation, in case of screw dislocation, so in case of a screw dislocation, this B, this Burgers vector B, this is parallel to your screw dislocation. Okay. So let's coming to the surface defects. So this defect which takes place on the surface of the material is known as the surface defect. तो अभी हम बात कर रहे थे line defect में, वहां पे defect था along the line of the crystal lattice, यहाँ पे है along the plane of the crystal lattice. So these kind of defects are known as surface defects. So it is basically due to the imperfect packing of the atoms on a plane during crystallization, or we can say like a defective orientation of the surface. So like if there the orientation of crystals is not in a proper way, so it will result in a surface defect. So let's see. So first one in the surface defect is the stacking fault. So what happens in the stacking fault? So whenever the stacking of atomic planes is not in proper sequence throughout the crystal, the fault is known as stacking fault. ठीक है, इसको समझेंगे इस डायग्राम से। सो वी हैव दिस स्टैकिंग सीक्वेंस ऑफ HCP। ओके, तो इस तरह से आपका है कि यहाँ पे आपका 3 प्लेन ऑफ एटम्स यहाँ पर इस तरह से रहेगा, इसको हम बोलेंगे A, ठीक है। देन वी हैव ओवर हियर इज दिस B प्लेन ऑफ एटम्स, यहाँ पे सेंटर में 1 है और ऐसा कॉर्नर में 6 है, उस तरह से नाउ इट इज रिपीटिंग। ओके, सो स्टैकिंग सीक्वेंस इज लाइक दिस AB AB AB, है ना। ये इस तरह से किस में है आपका HCP में है। ओके, तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि आपका ऐसा पैकिंग सीक्वेंस आ रहा है एटॉमिक प्लेन्स का। ओके, अब इसी में अगर स्टैकिंग फॉल्ट की बात कर रहे हैं, सो लाइक पैटर्न इज AB AB इन केस ऑफ HCP। सो फॉल्ट कैसा हो जाएगा, ये फॉल्ट आपको हो जाएगा अगर AB के बाद में आपका B के बाद में A रिपीट ना होके फिर B आ रहा है, ठीक है। A is followed by B and B is followed by A, so this is your regular stacking pattern. But if there is a fault, so fault can be like A is followed by B and B is followed by again B, so it is not being followed by A. Yeah. So this kind of fault is termed as your stacking fault. Okay, so when this stacking fault is created by inserting an extra plane of atom, then it is called extrinsic. इस तरह से आपने AB के बीच में एक प्लेन ऑफ एटम जो B प्लेन ऑफ एटम उसको इंसर्ट कर दिया, या हो सकता है यहाँ पे A इंसर्ट कर देते हैं, प्लेन ऑफ एटम A को इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो आपको फॉल्ट निकल के आता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक स्टैकिंग फॉल्ट। But if the fault is created by removing the plane of atoms, then the fault is intrinsic. इस तरह से आपने यहाँ पे AB 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 होना था, यहाँ पे आपने A को रिमूव कर दिया,
है ना। तो ए को रिमूव कर दिया तो मतलब इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये आपका बन गया इंट्रिंसिक स्टैकिंग फॉल्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज द ग्रेन बाउंड्री। सो क्या होता है, ये आपके यूजुअली फाउंड होता है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स में, जहां पे एक जो मटेरियल होता है इट इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर और बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ओरिएंटेशंस। ओके, वहां पे सिंगल क्रिस्टल ओरिएंटेशन नहीं होता है, एन नंबर ऑफ क्रिस्टल ओरिएंटेशन होता है। ओके, so this whenever the grains of different orientation separates a general pattern of atoms and exhibits a boundary, the defect is known as grain boundary। ठीक है, so these are barrier to the dislocation and also affect mechanical properties। so ये जो आपको दिख रहा है, ओके, दिस इज द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल, है ना। ये आपको एक ओरिएंटेशन इस तरह से मिल रहा है जहां पे आपका जो एटम्स अरेंज है वो इस तरह से कुछ एंगल्स में यहाँ पे अरेंज है। ओके, अभी नीचे में ये आपके एंगल्स आपके चेंज हो गए, यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स अभी आ गया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो एंगल है दिस इज डिफरेंट, यहाँ पे जो एंगल्स है दिस इज डिफरेंट, और इन दोनों के बीच में जो आपका कुछ ऐसा बाउंड्री जैसा निकल के आ रहा है, तो ये जो बाउंड्री है जो डिफरेंट क्रिस्टल ओरिएंटेशंस को डिवाइड करता है या उनको आपस में बांटता है ना। तो उस बाउंड्री को हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री, विच डिवाइड्स डिफरेंट क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशंस। ओके, तो ये जो ग्रेन बाउंड्री है ये यूजुअली आपके सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे बनते हैं। तो मतलब इस तरह से आपके छोटे छोटे इस तरह से ग्रेन्स, ऐसा क्रिस्टल ग्रेन्स ऐसा फॉर्म होने शुरू होते हैं किसी भी मटेरियल्स के अंदर में, है ना। ऐसे अलग अलग फॉर्म होना शुरू होता है, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे सॉलिडिफाई कर रहा है। तो इसी से सॉलिडिफाई करते करते ये ऐसा डिफरेंट डिफरेंट ऐसा ग्रेन्स ये इनमें इस तरह से पैदा होने शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे ऐसे करते करते ऐसे बढ़ेंगे और फिर ये कहीं पे जाके ये ऐसा कुछ ग्रेन ऐसा बाउंड्री जैसा कुछ बनता है। ओके, और फिर यहाँ पे ये जाके इस तरह से ये इस तरह से मिल जाएंगे। तो ये क्या होगा, वो स्टार्टिंग में था तो दैट वाज बिगिनिंग ऑफ द सॉलिडिफिकेशन, और ये इस तरह से पूरा आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा, तो दिस इज एंड ऑफ द सॉलिडिफिकेशन, है ना। अगर इस तरह से अगर रेगुलर एक पूरी एक लाइन में आपको इस तरह से पूरा क्रिस्टल ओरिएंटेशन एक ही टाइप का मिले तो इसको हम बोलते हैं लाइक सिंगल क्रिस्टल मटेरियल बोलते हैं। बट अगर इस तरह से कुछ मिलता है ना, इस तरह से कुछ मिलता है, इस तरह से ये आपको कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशंस मिल रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन मिल रहा है यहाँ पे, इस तरह से हो सकता है टेढ़ा भी मिल जाए, है ना। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टल मटेरियल बोलते हैं। ये इस तरह से कुछ आ जाए तो इसको बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल मटेरियल। okay, and the boundary which is dividing this different orientation of different crystals, तो इनको हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। तो जहां पर भी ये ग्रेन बाउंड्री होता है ना, दे एक्ट एज अ बैरियर टू डिसलोकेशंस, है ना। मतलब ये डिसलोकेशंस को मूव करने के लिए उसको मूव होने से उसको रोकते हैं, ठीक है। तो whenever there is a grain boundary in any material, so while you are producing some kind of alloy or you are producing some kind of composite, तो उसमें अगर अगर कहीं आपको ग्रेन बाउंड्री मिल जाता है तो दैट ग्रेन बाउंड्री इट विल एक्ट एज योर स्ट्रेंथनिंग पॉइंट, है ना। तो वो आपको मटेरियल को स्ट्रेंथन करता है, बिकॉज वहां पे आपने डिसलोकेशन जितना अगर मूव करेगा मतलब प्लास्टिक डिफॉर्म हो रहा है, और डिसलोकेशन को अगर मूव ना करने दिया जाए तो मतलब बोल सकते हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, या मटेरियल थोड़ा सा ब्रिटल में आ जाएगा, है ना। तो ग्रेन बाउंड्री होगा तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को आप इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज ट्विन बाउंड्री। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट ओनली। तो यहाँ पर क्या होता है, तो हियर द एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ वन साइड ऑफ बाउंड्री इज मिरर इमेज ऑफ द एटॉमिक अरेंजमेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द बाउंड्री। मतलब इस तरह से कुछ आपका बाउंड्री है, यहाँ पे अगर आपका इस तरह से कोई एक क्रिस्टल ओरिएंटेशन है, यहाँ पे दूसरी साइड में इस तरह से कुछ आपका क्रिस्टल ओरिएंटेशन आएगा। तो मतलब क्या है, एक साइड जो है आपको दूसरे साइड का मिरर इमेज है। ओके, सो इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका पैकिंग चल रहा है, ए बी सी ए बी, है ना, और ये सी के आने के बाद में फिर ऐसा उल्टा आ गया बी ए सी बी ए, है ना। तो ये आपका ये बन गया, आपका बाउंड्री बन गया। यहाँ पे जितना यहाँ जिस साइड में दिख रहा है ये इसका इस साइड में मिरर इमेज बन के आ गया। ओके, सो विद दिस एग्जांपल आल्सो यू कैन स्टडी। सो दिस इज योर ओवर हियर बाउंड्री वन क्रिस्टल प्लेन, है ना। इस क्रिस्टल प्लेन के इस साइड के जो क्रिस्टल प्लेन है वो आपका we have this is sort of your crystal boundary, है ना। तो यहाँ पे जो crystal plane A है, this is the mirror image of crystal plane B। okay, so this kind of defect is known as twin boundary। so this is all about in the first module। so we have covered near about all the topics in the first module, which includes about the crystal properties or the crystal system of the material। okay,
So in next module, we'll discuss about the iron carbon diagram and alloying system and solid solution and all those things. Okay. So till then, have a good day. Thank you.